सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी स्वस्थ होंगे। हम लोग बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्रीएम्बल. If you have missed the previous lectures, I urge to all of you to go through the previous one so that you have a background, so that you can easily understand and comprehend the subsequent lectures. I urge please go through the previous ones. Today we will discuss about the salient features of Indian Constitution. Okay, so today's topic is the salient features of Indian Constitution. Salient features of Indian Constitution. So let's begin our today's topic. Before to take salient features, I would like to share few information that will help you to build the background. First thing कि when we say salient features का मतलब क्या होता है? Salient features means the peculiar features, means कुछ unique features जो किसी particular constitution के हो. So we are studying कि peculiar features क्या है Indian constitution का. ये specific features of Indian constitution. Before that, let's share information. Whenever we say constitution, there is a debate that there are the two ideal types. Okay, not everywhere used, लेकिन इसको रखने से it will help you कि there is a one hand British constitution and on the another hand there is Constitution of America, that is American Constitution. Okay, so British Constitution, which is based on principle of the parliamentary sovereignty, and American Constitution is based on the principle of judicial supremacy, Okay, for the time being अभी क्या याद रखना है? Now the British Constitution parliamentary sovereignty पे based है, American Constitution judicial supremacy पे based है. इसका मतलब क्या है कि in the concept of trinity of state, इसके तीन एलिमेंट्स है, legislature, executive and judiciary. In the context of Britain, judiciary and legislature में जो parliament है, that is legislature, that is sovereign है, मतलब सबसे ऊपर होता है. अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में ये जुडिशरी सबसे सुप्रीम होता है, मतलब सबसे ऊपर होता है. क्लियर? वी विल क्लैरिफाई इन लेटर ऑन. हम लोग बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एंड ट्राई टू कंसोलिडेट कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द सैलिएंट फीचर्स. With very simple note, what is the first feature? That is the written constitution. Indian constitution कैसा है? The first is the written constitution. Whenever we say or try to classify the constitutions of the world, basically there are two types. Either they are written or they can be unwritten. फॉर द टाइम बिंग अभी ऐसे नहीं समझना है कि वो लिखा हुआ है या ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है. रिटन एंड अनरिटन हैव सम अदर मीनिंग. व्हेन वी से रिटन, इसका मतलब क्या है कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय ए स्पेशल मशीनरी, मतलब कोई भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बना दिया. देयर शुड हैव अ बॉडी which have actually framed that constitution. Second, that the constitution is enacted by a due process. What I say? The constitution is enacted by due process. Okay? इसका मतलब क्या है? ये प्रोसेस उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है? लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है. What? ये कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी कौन प्रोवाइड करता है? That due process.
इसका मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल मशीनरी से बना है and that machinery has followed a due process of enactment, then that is called written constitution. ये दोनों नहीं है, then it is called unwritten constitution. Getting my point? So Indian constitution के केस में क्या था? Yes, Indian constitution, it is prepared by a machinery that is called Constituent Assembly, that is called Constituent Assembly. It means first criteria is qualified. Second, it is a due process. Yes, from the 1946 to we will take up key. It will take the time to frame the to prepare our constitution. मतलब due process followed हुआ. इसका मतलब क्या? Second criteria is also satisfied. So we can conclude the Indian constitution is what? It is a written constitution. The first feature is Indian constitution is a written constitution. लेकिन unwritten के examples तुमको चाहिए, then which one? It is your British constitution. So British constitution is an example of unwritten constitution. ठीक है? And world first written constitution is a American constitution, the Constitution of America. So American constitution is an example of a written constitution. British is an example of unwritten constitution. And what is Indian constitution? It is an example of written constitution. What are the features? These are the features. Keep it. Let's take the second feature. The second feature is about from how many sources our constitution has been prepared. Okay, so it means we are talking about the sources of the constitutions. Indian constitution is borrowed from many sources. Okay, in the last lecture we have also discussed, so we will take up a recap. The Constitution of India, we divide it into three parts: the structural part, the political part, and third one, the philosophical part. The structural part, it is borrowed from what? Structure मतलब बड़ा है, इसका मतलब from which document? Government of India Act 1935. Okay, the political part, Britain, याद रखिए, political system, parliamentary system है, इसका मतलब वो कहाँ से लिया गया होगा? British Constitution से. Okay, and third one, the philosophical. Philosophical includes the fundamental rights and the DPSP. So the fundamental right from Constitution of America, इसका मतलब American Constitution, Constitution of America, and the DPSP from Constitution of Ireland, that is Irish Constitution. The second feature, additionally there are a number of provisions like the interstate trade and commerce from Constitution of Australia. Okay, we will take up all the features. We will take one day, we will take up a trick to remember from which country which provisions are taken. Okay, so for the time being, that let's conclude. The Constitution of India is borrowed from the constitutions of many of the country, out of which the three important aspects, that is structural part taken from Government of India Act, political part we take from British Constitution, the philosophical part we have taken from fundamental right from the Constitution of America, DPSP from the Irish Constitution. Getting my point? Let's move to the next feature. The third feature is the federal versus unitary. So in this debate where our constitution stands, so let's try to understand the two terms. So when we say federation, okay, remember the article 1. Article 1 क्या बोलता है कि India, that is भारत, which is a union of states. What is India? That is Bharat is a union of state. Is a union of state. Is a union of state. इसका मतलब क्या है?
कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म फेडरेशन इज नोवेयर यूज्ड। पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे, द टर्म फेडरेशन इज नोवेयर यूज्ड। फेडरेशन टर्म का कहीं भी यूज नहीं किया गया है, ठीक है, नोवेयर यूज्ड। तो फेडरेशन होता क्या है? फेडरेशन बेसिकली एक पॉलिटिकल सेटअप है जिसमें इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं ना, फेडरेशन या फेडरल सिस्टम। इसके दो कंपोनेंट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों पावर शेयर करता है और दोनों का सोर्स ऑफ पावर क्या होगा, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब देयर आर सर्टेन लिस्ट जिसमें एक्सक्लूसिव राइट्स होगा सेंटर को लॉ बनाने का, एंड देयर आर द सर्टेन लिस्ट जिसमें से एक्सक्लूसिव राइट्स होगा स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने का, ठीक है। इसका मतलब देयर इज ए पॉलिटिकल सेटअप वेयर the power is shared between two components, that is one called central government, second one is called state government, and they legitimized through a exclusively defined list, ठीक है। In the Indian context, the central government will derive its exclusive power of legislation from the union list, state government from the state list, और एक लिस्ट होता है that is called concurrent list, इसमें दोनों ही लॉ बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन एक केस है जब एक ही सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बनाता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, देन सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है, मतलब डोमिनेट करेगा। तो फेडरेशन में क्या चीज समझना है कि इट इज ए पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव लिस्ट होंगे जहां पर लॉ बना सकता है। और इन केस ऑफ इंडिया इसी को सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट को क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट को क्या बोलते हैं, स्टेट लिस्ट, और एक कंकरेंट लिस्ट है जहां पर दोनों ही लॉ बना सकता है। और इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यदि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना दिया तो यहाँ पर द सेंट्रल लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ क्या करेगा, प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फेडरल सिस्टम। इसमें यूनियन टेरिटोरी नहीं है, याद रखिएगा, एक्वायर्ड टेरिटोरी नहीं होता है, ठीक है। व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज फेडरेशन और फेडरल मॉडल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फेडरल सिस्टम है, ठीक है, फेडरल सिस्टम। मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, दोनों के अलग अलग लिस्ट है। ये लिस्ट सिस्टम कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है, 7th शेड्यूल, okay, list system is mentioned in 7th schedule. So there is union list, there is state list, and there is concurrent list. तीन तरह के लिस्ट होते हैं। So union list is exclusively for what, central government, state list is exclusive for state government, and concurrent list is for state government plus central government. In case of conflict, which will prevail, the central government will prevail. इतने पॉइंट्स याद रहेंगे अभी, यस यू कैन। सो लेट्स मूव। और यूनिटरी फीचर्स में क्या होते हैं कि यूनिटरी फीचर्स में देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। और यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट वहां है तो वो अपनी लेजिटिमेसी या पावर उस सेंट्रल गवर्नमेंट से डिराइव करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी फीचर्स। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जब भी इस डिबेट में, फेडरेशन के डिबेट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस मॉडल को अडॉप्ट करता है, ओके, वी विल सब्सिक्वेंट लेक्चर्स कि क्या होता है फेडरेशन। फेडरेशन इज ए बिगर टर्म, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स अंडरस्टैंड कि फेडरेशन दो टाइप से बनते हैं। देयर आर टू वेज टू फॉर्म ए फेडरेशन, ठीक है। What are the two ways? The first method is the process of integration. The process of integration, अभी याद रखना है। Second method क्या है, process of disintegration. Process of disintegration. Okay? In process of integration में क्या है,
बेसिकली फेडरेशन क्या है? इट इज ए पॉलिटिकल सेटअप वेयर देयर इज ए डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है कि बहुत सारे स्मॉलर स्टेट्स मिलके बिगर स्टेट्स बनाए, जस्ट लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इनिशियली स्टेट्स थे और स्टेट्स आपस में इंटीग्रेट किए एंड उसके बाद क्या हुआ, एक बिगर स्टेट बना दिया. दैट इज कॉल्ड नेशन स्टेट. दैट इज कॉल्ड नेशन स्टेट. ठीक है, सो नेशन स्टेट में अब क्या हुआ कि दिस ही बिकम्स ए सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्मॉलर स्टेट्स थे दैट ऑल रिमेन द स्टेट गवर्नमेंट. तो इन दोनों का एक सुप्रीम है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. तो स्टेट गवर्नमेंट के अपने पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पावर्स हैं. तो इसका मतलब a type of political system which formed by the integration by the association of the smaller entities, that is called process of integration. और इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप मॉडल है that is what the American system. तो अमेरिकन सिस्टम क्या है ना, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फेडरेशन, जो किस प्रोसेस से बना है, इंटीग्रेशन प्रोसेस. लेकिन एक अनदर मेथड है दैट इज डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस. तो डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा ना, डिसइंटीग्रेशन में भी दो चीज बनेगा, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. डिसइंटीग्रेशन में क्या है कि एक बिगर एंटिटी ऑलरेडी है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट. अब ये इतना बिगर है कि एक गवर्नमेंट से ये कंप्लीटली गवर्न नहीं हो रहा है, एडमिनिस्टर नहीं हो रहा है. ठीक है, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है. तब हम लोग क्या किया जाता है कि उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. ओके, और स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जिसको हम लोग जनरली गवर्नर बोलते हैं, उसके जुरिस्डिक्शन में दो तरह का सिस्टम डेवलप किया जाता है कि बिगर है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्मॉलर स्फीयर है दैट इज कॉल्ड स्टेट या प्रोविंस, जिसका एक हेड होगा दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. एंड इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, फेडरेशन. ये फेडरेशन कैसे बना है, थ्रू प्रोसेस ऑफ डिवीजन इन डिसइंटीग्रेशन. एंड the world oldest example is your Canadian system. So Canada, the constitution of Canada formed by the process of disintegration. अब हम लोग देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the constitution of India followed the precedent of Canadian constitution. So Indian constitution followed the precedent of Canadian constitution. ठीक है, याद रखिएगा. So federation for the time being you should remember कि क्या होता है. The federation is a political system और setup यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के बीच पावर शेयर होता है थ्रू द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स. एंड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लिस्ट सिस्टम इज मेंशन्ड इन 7th शेड्यूल. फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय टू प्रोसेस, इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन. क्यों करते हैं, फॉर द गवर्नेंस, एक टर्म में फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस. इंटीग्रेशन में स्मॉलर स्टेट्स फ्यूज टुगेदर, एसोसिएट टुगेदर, फॉर्म्ड ए बिगर नेशन स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्मॉलर स्टेट दैट इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट. एग्जांपल इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. और एक बिगर स्टेट ऑलरेडी था दैट डिवाइड इनटू स्मॉलर अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड दैट इज योर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी फेडरेशन है, ये भी फेडरेशन है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस मॉडल को फॉलो करता है, कैनेडियन प्रेसिडेंट. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोविजन. नाउ next provision is your the rigidity versus flexibility. Rigidity versus flexibility. Rigidity and flexibility मतलब क्या होता है कि the constitution is there. Constitution कल क्या बताया था कि इसके पास कुछ ऐसे provisions भी होते हैं through which it can be changed. Okay, so rigidity means the constitution can be amended by a special mechanism. The constitution can be amended through a special arrangement, through a special mechanism, through a special arrangement. For example, in American Constitution, it means constitution cannot be amended through
ए नॉर्मल लेजिस्लेशन थ्रू एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, बट इन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन ए सेम वे एज ए पीस ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन. मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन can be amended similar to a ordinary piece of legislation. Ordinary piece of legislation का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए इन वन हैंड रिजिडिटी में कि एक स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए, वो कंडीशन क्वालिफाई होना चाहिए, तभी इसको हम लोग अमेंड कर सकते. बट इन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपली जैसे हम लोग एक ऑर्डिनरी बिल पास करते हैं उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते. ओके, तो ये स्पेशल अरेंजमेंट है क्या? स्पेशल अरेंजमेंट को बेसिकली इन टर्म्स ऑफ हम लोग समझते हैं क्या ना, मेजॉरिटी. ठीक है ना. व्हाट डू यू मीन बाय मेजॉरिटी? जब भी मेजॉरिटी की बात करेंगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेशल मेजॉरिटी. स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? एक टर्म्स याद रखिएगा, 2/3 ऑफ पीवी प्लस 50% प्लस 1 ऑफ टोटल मेंबरशिप, total members of the house. This is called the special majority. Okay, just like for our constitution, our legislature क्या क्या है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा, इसके अपने अपने मेंबर्स है, टोटल मेंबर्स है. तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए यदि हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि उस हाउस के प्रेजेंट एंड वोटिंग, पीवी फॉर प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 एंड 50% प्लस 1 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, देन वी कॉल इट स्पेशल मेजॉरिटी. ठीक है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए यदि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए देन वी कॉल इट रिजिड मेथड. बट कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्डिनरी पीस की तरह हम लोग भी अमेंड कर सकते हैं, लाइक सिंपल मेजॉरिटी से, लाइक सिंपल मेजॉरिटी. ठीक है, मतलब जितना प्रेजेंट है उसका 50% प्लस 1 हो, उसी से हम लोग उसको अमेंड कर सकते हैं. पास करने के लिए मतलब सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, देन इट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब क्या है, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बेसिकली the blend of rigidity and flexibility. क्या है? blend of rigidity and flexibility. ठीक है, कैसे? We have seen कि there is article 368, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं. तो आर्टिकल 368 दो प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं. ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड. और कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें दो चीज चाहिए. नंबर 1 स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट, ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए. कंसेंट ऑफ स्टेट, तो ये किस में आ जाएगा, रिजिड प्रोविजंस में. बट कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको हम लोग सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड कर सकते हैं. तो ये किस में आ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी में. ठीक है, जस्ट लाइक कि सैलरी वगैरह अलाउंसेस वगैरह चेंज करना है, बढ़ाना है, तो उसको सिंपल मेजॉरिटी से करेंगे. ठीक है, बट जुडिशरी में कुछ चेंजेस करना है, फंडामेंटल राइट्स में, तो इसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए. तो इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को कितने तरीके से हम लोग अमेंड कर सकते हैं, देयर आर 3 मेथड. 2, एक स्पेशल मेजॉरिटी, सेकंड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट, थर्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी. ये दोनों प्रोविजंस आर्टिकल 368 में आता है अंडर कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट. बट ये सिंपल मेजॉरिटी जो आउटसाइड आर्टिकल 368 आता है, तो दैट इज
It is an important point. Keep remember. Okay. So here rigidity, here it is flexibility, and it is flexibility. Okay. So let's conclude. Okay, what are the features we have seen? That first feature we have seen the written versus unwritten constitution. इसमें हमने क्या देखा? Indian constitution follow a written constitution. Second, that in various sources, political, structural and philosophical, we have seen. Third, that in rigidity versus flexibility, we have seen. If flexibility simple majority, rigidity special majority, Indian constitution follow a blend of the rigidity and flexibility. The fourth features, that is in the parliamentary versus presidential system. That in parliamentary system, based on the parliamentary sovereignty, or presidential system is based on judicial supremacy. Parliamentary system, example British Constitution. Presidential system, example American Constitution. Next feature, the federal system versus unitary system. The federal system, there is a central government, state government. Unitary system, single government. The unitary system, the American Constitution. ठीक है, here Indian Constitution के केस में क्या था वो कि it is a, we call it the quasi federal system. ठीक है, ये फेडरेशन के भी फीचर्स हैं, यूनिटरी के भी फीचर्स हैं. ओके, तो इन शॉर्ट फेडरेशन के फीचर्स को याद रखने हैं कि क्या क्या फेडरल सिस्टम के फीचर्स होते हैं. सो यू कैन रिकॉल इट बाय दिस ट्रिक कि फेडरल सिस्टम के प्रोविजंस हैं DD, WRS, IB. Okay, first feature is your the double government. Double government, इसका मतलब central government and state government. Then division of power, division of powers. Yes, इसके बीच में central government और state government, union list, state list, concurrent list. Okay, then ये फीचर्स याद रखिएगा. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए? रिटन. देन R फॉर रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड विथ व्हाट? स्पेशल मशीनरी, इसको हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी में समझे. S फॉर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. I फॉर independent judiciary, I for independent judiciary. We will see कि judiciary independent इसका मतलब क्या होता है, but for the time being याद रखिए independent है इसका मतलब federal है. And B for bicameralism, bicameralism, bicameralism का मतलब अभी for the time being याद रखिए कि legislature के दो हाउस हैं, upper house और लोअर हाउस, तो वो बाइकैमरल है. यदि लेजिस्लेचर का सिर्फ एक हाउस है वो यूनिकैमरल है. मतलब जैसे भारत के केस में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस है, ये बाइकैमरल है. स्टेट में भी क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल. कुछ स्टेट्स हैं जिसमें सिर्फ एक ही है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जब एक हाउस हो तो उसको यूनिकैमरलिज्म, दो हाउसेस हो तो बाइकैमरलिज्म. तो फेडरल फीचर्स को याद रखने का एक ट्रिक है, DD, WRS एंड IB. ओके, जो इसमें से जो नहीं है वो सिर्फ क्या होगा, यूनिटरी के फीचर्स होंगे. जैसे I, ये याद रखिएगा इंटीग्रेटेड टर्म है. क्या टर्म है? इंटीग्रेटेड. तो वो किसका फीचर हो जाएगा ना, यूनिटरी का. याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. बट इफ इट इज इंडिपेंडेंट है तो वो किसका फीचर है, फेडरल का. ठीक है, हम लोग और भी फीचर्स देखेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसको याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. सो सब्सिक्वेंटली in tomorrow we will continue with the topic that is salient features. So please revise, take care, good luck, see you again, thank you.